Good afternoon, friends. Hello. Let's start with my introduction. Myself Ankush Dange, and I have secured All India rank 97 in CAPF Assistant Commandant 2019 examination. Today we are going to learn the strategy for paper 2, how to cover the topics of paper 2 and how to complete the paper 2 in prescribed time, because completing the paper 2 within a prescribed time is a very difficult task and we have to tackle that task. So for completion the given task you need proper practice, that is the answer writing and essay writing practice. Then you have a proper plan and you have a timeline to complete each and every questions. Okay, in this lecture we are going to study each and every questions of the paper 2, that is the general studies, essay and comprehension. The paper 2, the name itself denote it is a paper of general studies, essay and comprehension. From the previous year papers we can analyze the types of question on each and every topics. Also, if we analyze the papers and the scores, in my opinions there are three important parameters for the papers. First one is your content, second one is your presentation and aesthetic look, okay, and third one is your grammar language, okay, your language and the grammar. In CAPF paper 2 your language and your grammar is checked, okay. In other aspect, civil service, there is no issue of grammar or language as such, but in CAPF you have to give more emphasis on the language and the grammar. So this is one of the most important element. Then in this lecture we are going to study each question one by one. We will take example, okay, and move on another question. So starting with paper 1 and starting with first question, that is essay. For essay, in your syllabus of paper 2 it is explicitly mentioned that the essay will be asked from modern history, especially Indian struggle for independence, then polity, economy, security and internal security, okay. So if we analyze the papers, previous year papers, then you would see that the questions are always and almost asked from that area only, because there were a question on the freedom struggle, okay, there were question on the defense, security, etc. For example, the contribution of the army in the nation building, okay. Economy say the farmers issue, the agrarian issue, okay, farmer suicides. So you can predict the topic, okay. हर साल डिफेंस से लेकर एक क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से लेकर एक क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिक्स से लेकर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो. कोई भी साल में जो इशू ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जो ज़्यादा बड़ा इशू होता है, सिग्निफिकेंट होता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के लिए. तब आपको भी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको भी प्रेडिक्ट करके रेडी रहना पड़ेगा, ओके. देन नेक्स्ट थिंग, फॉर essay you have a option to choose your medium. आप essay को हिंदी में लिख सकते हो एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो आप चूज़ कर सकते हो द मीडियम. लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके लिए आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके. आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं अदर क्वेश्चंस. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन essay, तो essay को राइट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. प्रॉपर स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. हम हर पार्ट पर ध्यान देंगे, ओके. कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि CAPF का essay 300 वर्ड्स में लिखना चाहिए आपको, ओके. तो वर्ड्स लिमिट कम है, तो आप इंट्रोडक्शन भी कम वर्ड्स में अटेम्प्ट करेंगे. तो आप कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, और आप समटाइम्स जो कुछ स्मॉल स्टोरी हो, एनेक्डोट हो, तो उसका यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल
आपको एग्रीकल्चर और या हेल्थ सेक्टर पर कुछ ऐसे आ गया तो आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि जब हेल्थ सेक्टर पर एक कोई ऐसे आता था तो मुझे एक एनेक्डोट मालूम थी और जो मैंने अपने न्यूज़पेपर से ली थी। वो एनेक्डोट ऐसी थी कि इन ओडिशा स्टेट देयर वेर अ ट्राइबल मैन हु वाज कैरिंग अ बॉडी ऑफ हर वाइफ ऑन हिज शोल्डर्स। ओके, जो आदमी था एक ट्राइबल था, उसने अपने शोल्डर पर अपनी वाइफ की बॉडी लेकर जा रहा था। द रीज़न वॉज द हॉस्पिटल अथॉरिटी हैज़ डिनाइड द एम्बुलेंस फैसिलिटी टू हिम। ओके, दिस shows the picture and scenario of the health system in India. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैं ऐसे एनेक्डोट से स्टार्ट करता था ऐसे। तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया। आपका इंट्रोडक्शन शुड भी कैची होना चाहिए। आपका जो कंप्लीट जो मीनिंग है ऐसे का तो उस इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आपको ऐसे में ये एम्फेसाइज करना होगा। आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी जो रिलेवेंट कोट्स हो ऐसे के टॉपिक से, तो आप कोट से कोट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। कोट आप कौन से यूज़ कर सकते हैं? कोई महात्मा गांधी का कोट है, देन मार्टिन लूथर किंग, देन बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कुछ कोट है, तो आप कुछ रिलेवेंट कोट स्टार्ट कर सकते हो। फिर कोट के नीचे जो कोट होता है उसके नीचे आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, व्हाट द कोट एग्जैक्टली मीन्स। ओके, आपको उसका मीनिंग भी लिखना है। तो इन ऐसे ऑन ईच एंड एवरी पेज फॉर वन ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3 पेजेस आर गिवन। ओके, एंड ये मेरा मानना है कि आपको हर एक पेज पर 4 पैसेज करने चाहिए। स्मॉल 4 पैसेज आप 4 पैसेज कर सकते हो, क्योंकि आप जब पैसेज करेंगे 4 तो आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू आप 1 और 2 पैसेज करेंगे। तो आपको प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो 4 पैसेज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हर एक एस्पेक्ट होता है उस एस्पेक्ट को एक पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे। देन हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे हमें एक एक एस्पेक्ट को कवर करना है। तो हमारा इंट्रो बेसिकली हो गया। हम कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एम्पावरमेंट का आ गया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस लोकसभा में ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज ओनली 14%. दिस शोज द participation of the women in decision making and the parliament and the political system. So empowerment क्या हुआ? कम हुआ। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से लेकर हमारा ह्यूमन का एम्पावरमेंट बहुत कम है। तो हम ये बता सकते हैं। इससे क्या हुआ? हमने डायरेक्टली हिट किया ऐसे के टॉपिक को, ऐसे का जो सब्जेक्ट है इसको। तो आप इंट्रोडक्शन अलग अलग वे से कर सकते हो। देन कमिंग टू द बॉडी, पहले हमें जब भी ऐसे स्टार्ट करना है, कौन सा भी ऐसे स्टार्ट किया, आपको टाइम है ऐसे को 20 मिनट्स टाइम है। तो मेरा ये मानना है कि आप वो 20 मिनट से 5 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को दो। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ऑन एनी गिवन इश्यू आपको क्या करना होता है कि वेरियस पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। जो इश्यू है, जो सब्जेक्ट दिया है, उस पर आप मल्टीपल एस्पेक्ट से पॉइंट कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ द करप्शन इन इंडिया इज अ टॉपिक। तो करप्शन है, तो हमें करप्शन से लेकर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है? तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट से थिंक करना पड़ेगा। टेक एन एग्जांपल, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कैसे थिंक करेंगे करप्शन पर? जब करप्शन बढ़ता है पॉलिटिक्स में तो क्या होता है? 2 चीज़ें होती है। एक तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स होते हैं एंड अदर इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स होता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। ओके, देन क्या हो सकता है? जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक, और जो डेमोक्रेसी है कंप्लीट डेमोक्रेसी, वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती क्योंकि करप्शन की वजह से। जो लोअर लेवल के
जो ग्रास रूट लेवल के पीपल्स है उनको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा लोअर लेवल जो गरीब लोगों का इन दी हायर लेवल। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अपने करप्शन टॉपिक से। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दैट इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स and the criminalization of the आप कैसे और भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। आपने पॉलिटी पढ़ा है लक्ष्मीकांत, उसमें लोकपाल एंड लोकायुक्त चैप्टर है। तो लोकपाल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू चेक द करप्शन। तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो लोकपाल को। देन अदर कोई बॉडीज है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ओके, देन सीबीआई, देज आर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द करप्शन। तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो, सीवीसी, देन सीबीआई, ओके। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। देन अनदर एस्पेक्ट हम सोचेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं करप्शन को? देखो, जब करप्शन होगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कोई भी कंट्री की हो या कोई समाज की हो, वो नहीं कम होगी या हो नहीं सकती करप्शन से। क्या होगा? करप्शन से क्या होता है? करप्शन के दो टाइप होते हैं, एक रिटेल करप्शन एंड एक होलसेल करप्शन। जब भी रिटेल करप्शन होता है तब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा हार्म जो पुअर लोग होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि रिटेल करप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट गरीब लोगों को पड़ेगा। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी करप्शन की ओर से। फॉर एग्जांपल, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में करप्शन होता है तो वो एक्टिविटीज़ स्लो स्पीड से हो सकती है। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। ऐसे में एग्जांपल देना बहुत ही अच्छा है। आप जब एग्जांपल देंगे करप्शन के और कोई भी टॉपिक हो तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। इकोनॉमिक में कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको रोड मालूम है, रोड डेवलपमेंट। तो रोड डेवलपमेंट में अक्सर करप्शन होता है। तो रोड डेवलपमेंट में करप्शन होगा तो क्या होगा? उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो सबऑर्डिनेट क्वालिटी का यूज़ होगा। तो रोड डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी और रोड खराब होगी जल्द ही। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। तो क्या होगा? इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा करप्शन का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जो अनइक्वल डेवलपमेंट होगी, इनइक्वालिटी फैल जाएगी करप्शन से। और हमें क्या एज अ वेलफेयर स्टेट हमें इंडिया को इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। देन जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम इसी तरह इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को करप्शन से लिंक करेंगे। देन अनदर एस्पेक्ट इज सोशल एस्पेक्ट। तो सोशल एस्पेक्ट में क्या आएगा? करप्शन को हमें सोसाइटी से लिंक करना है। एक तो करप्शन अनइथिकल है, तो सोसाइटी की जो मॉरल है, मॉरलिटी है, इथिक्स है, वो डिग्रेड हो रहे है, इसका ये एग्जांपल है। देन सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मेन वुमेन इनइक्वालिटी और द हायर क्लास एंड अपर क्लास। ओके, जो हायर क्लास है एंड अपर क्लास है उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। ओके, सोशल में हम ये डाल सकते हो। देन सिक्योरिटी में क्या हो सकता है? करप्शन की वजह से आपकी अपने देश की सिक्योरिटी भी हार्म हो सकती है। ओके, एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म ट्रैफिकिंग हो, तो उससे क्या होगा? ये तो इलीगल एक्टिविटीज़ है। उससे क्या होगा कि एडिक्शन बढ़ सकता है। जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो हार्म हो सकती है। तो हमने सिक्योरिटी को भी लिंक किया। देन करप्शन का एनवायरनमेंट से क्या लिंक कर सकते हो?
देखो करप्शन का मीनिंग क्या है, बहुत ब्रॉड है। करप्शन इज नॉट जस्ट मीन दी ब्राइबरी, टेकिंग द मनी। करप्शन का यही भी मीनिंग होता है कि अपना जो रोल है, अपना जो मैंडेट है, उसको अच्छे से नहीं निभाना, ये भी करप्शन हो सकता है। ओके, उसमें कुछ कसूर छोड़ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ करप्शन। तो एनवायरनमेंट एंड करप्शन का हम लिंकेज कैसा बनाएंगे? करप्शन होगा तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। ओके, तो ये भी है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका भी जो इमरजेंसी है, क्लाइमेट चेंज की जो संकट है वो बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे इंटरलिंक कर सकते एवरी एस्पेक्ट को। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो थीम हो गई, सेंट्रल थीम हो गई ऐसे के। हम इसी तरह पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं हर एक ऐसे पर। ओके, आपको ऐसे डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से आपको थिंक करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें कल्चर भी आप ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली these आर दी डिफरेंट एस्पेक्ट एंड डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन अ गिवन एसे। ओके, अदर भी थीम्स है, ये तो थीम, हम इसे थीम कर सकते हो और एस्पेक्ट कर सकते हो। इसका और भी एक सिंपल ट्रिक है। आप क्या करें, आपकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, आपको जो गिवन सब्जेक्ट है एसे का, उस सब्जेक्ट को आपकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे जस्ट लिंक करना है, रिलेवेंट करना है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी टॉपिक हो, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से लिंक करो, हिस्ट्री के सिलेबस से। ओके, देन आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से कुछ लिंक कर सकते हो क्या? ओके, करप्शन यहाँ ज़्यादा है इस स्टेट में, कोई रिपोर्ट हो तो आपको ऐसे में कुछ रिपोर्ट हो तो डालना है। फॉर एग्जांपल, जो एक रिपोर्ट है, ओके, ट्रांसपेरेंसी का, तो इंडिया का रैंकिंग है उसमें बहुत कम है, तो आप वो कोट कर सकते हो, 79 रैंकिंग है हमारी, तो जो फैक्ट आपको डालना है। देन अदर थीम्स क्या है, आप कैसे पॉइंट क्रिएट कर सकते हो? हम हिस्टोरिकली भी रिलेवेंट कर सकते हो। हिस्टोरिकली करप्शन था क्या? यस, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, एज ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्स इन इंडिया, देन एट दैट टाइम द करप्शन वॉज वेरी बिग। उस टाइम भी करप्शन था, आज भी है, हम ऐसे भी रिलेवेंट कर सकते हो। देन आप आचार्य चाणक्य है, उनका भी कुछ कोट यूज कर सकते हो, उन्होंने करप्शन के बारे में कुछ कहा होगा तो आप मल्टीपल डायमेंशन से मल्टीपल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो गिवन एसे पर, और वो आपकी बॉडी हो जाएगी। ओके, एसे की बॉडी। तो आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक पैराग्राफ में बैठाना है, एक एस्पेक्ट को एक पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, आप जो कहना चाहते हैं करप्शन के बारे में, तो आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एक पैराग्राफ में बिठाना है। देन जो सोशल एस्पेक्ट है उसको आपको अलग पैराग्राफ में बिठाना है। देन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, देन एनवायरमेंटल, देन सिक्योरिटी। ऐसे आप हर एक पैराग्राफ पर हर एक एस्पेक्ट को कवर कीजिए। ओके, उससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। जो एग्जामिनर है उसको भी इजीली वो चेक कर सकता है हर एक एस्पेक्ट, और उससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइज नेचर है, ऑर्गेनाइज आप लिखते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बॉडी के बारे में तो आप कुछ दिक्कत नहीं होगी। देन कमिंग टू द कंक्लूजन, तो यस, वन मोर पॉइंट, कंक्लूजन के पहले भी आपको क्या करना है, अब हमने करप्शन के बारे में तो बता दिया कि प्रॉब्लम से है, लेकिन एज अ एनी एडमिनिस्ट्रेटर और एनी ऑफिसर वी हैव टू ऑल्सो गिव सोल्यूशन। आपको कुछ सोल्यूशन भी देने हैं। सो करप्शन पर क्या सोल्यूशन है, आप इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया है सीवीसी और लोकपाल या सीबीआई का, तो उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, तो क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं क्या, वो भी आपको लिखना है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है क्या, फॉर एग्जांपल वीमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे आता है, तो आपको लिखना है कि वीमेन के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है क्या। फॉर एग्जांपल किरण स्कीम है, नई रोशनी स्कीम है, तो आपको उसको मेंशन करना होगा गवर्नमेंट मेजर्स में। ओके, आपके भी क्या ओपिनियन है, हम क्या कर सकते हैं, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। पहले तो क्या आएगा, पहले
हम इंट्रो करेंगे, तो बॉडी में पहले जो प्रॉब्लम है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल डायमेंशन से, उसके कॉजेस क्या है, देन हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन क्या है उस पर लिखेंगे। देन हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम जो स्टेप्स है उनको लिखेंगे। देन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या आएगा, आपको कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक लिखना है, बैलेंस लिखना है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस में आपको जो ऑप्टिमिस्टिक बातें वो लिखनी है। आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, यस दिस इज़ द प्रॉब्लम बट वी कैन डू दिस थिंग्स, वी कैन डू दिस मेजर्स। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक लिखना है। तो कंक्लूजन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में कंक्लूजन करने के लिए मैं अक्सर क्या करता था, मैं फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, इसके अलावा जो नीति आयोग के रिपोर्ट है तो मैं उसका यूज़ करता था। तो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पे कोई ऐसे आता है तो मैं कंक्लूजन में लिखता था कि टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, नेचर एंड एनिमल्स ओके इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन में। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें 17 गोल्स है ओके एंड 169 टारगेट्स है। तो जो 17 गोल्स होते हैं वो हमारे ईच कंट्री के, हमारे सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को छू लेते हैं। तो उसका यूज़ हम हमारे ऐसे के कंक्लूजन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इज़ देयर एनी ऐसे रिगार्डिंग पावर्टी, देन हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला टारगेट है रिडक्शन ऑफ द पावर्टी, तो हम ये मेजर लेंगे तो हम वो गोल अटेंड कर सकेंगे ओके, सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो अब हमें कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द एसे, आपको एसे में ग्रामेटिकल भी एरर कम करना है, आपको ग्रामेटिकली प्योर लिखना है, ट्राई करना है। लेकिन क्योंकि क्या है ना कि ये मेरा मानना है कि वो ग्रामर चेक करते हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में, तो हम ग्रामेटिकली मिस्टेक कैसे कम कर सकते हैं, आप स्मॉल सेंटेंस बनाओ, क्योंकि जब हम लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं तो मिस्टेक के लिए प्रोन होती है, तो उसमें मिस्टेक ज़्यादा हो सकती है। तो आपको स्मॉल सेंटेंस बनानी होगी ओके। देन आप जो टेंस होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेंस हो गए, जो प्रोनाउन हो गए उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो जो मिस्टेक होते हैं उसे कम कर दीजिए ओके। दिस आर दी सजेशन टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक। देन थर्ड एस्पेक्ट इज द योर प्रेजेंटेशन पार्ट। इन माई ओपिनियन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स who have a very good content, but due to lack of presentation and aesthetic look they did not clear phase 1, that is the paper 2. So I will suggest give more emphasis on the presentation part also. So what is mean by presentation, what are the different aspect of the presentation, so we will study one by one. प्रेजेंटेशन में देखो, पहले तो क्या होता है कि यूपीएससी का पेज कैसा होता है कि यूपीएससी का एक पेज होता है कंप्लीटली ब्लैंक होता है और चारों तरफ आउटलाइन होती है ओके। आपको ये ध्यान में रखना है कि आउटलाइन में कोई भी वर्ड जा ना पाए आपका ओके। अब अगर जाए तो आपको पेनल्टी हो सकती है, तो आपको प्रिकॉशन लेना है कि आपको आउटलाइन के अंदर ही लिखना है ओके। देन कमिंग टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, मैंने कहा कि आपको कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ बनाने हैं हर एक पेज पर। पैराग्राफ बनाने से आपका प्रेजेंटेशन और भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को हर एक फैक्ट और जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो क्लियरली दिख जाएंगे। देन आपको पैसेज को अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने ये किया था कि मेरा माइन्यूट प्लानिंग था कि फॉर एग्जांपल मैंने
फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ एंड कर दिया, तो मैं ये प्रिकॉशंस लेता था कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ से के जो फर्स्ट लाइन है उसके नीचे ही हो। ओके, सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ से स्टार्टिंग होती थी। ओके, क्या है ना, कोई वो दिखने के लिए अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से कर ली, तो ऑब्वियस बात है तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा मानना है कि आपको पैराग्राफ भी अच्छे से बनाने होंगे। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, आपको हर एक पैराग्राफ में एक डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। तो मेरा मानना है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी। ओके, लेकिन अंडरलाइन ज़्यादा भी ना हो। अंडरलाइन आपको जो कीवर्ड्स है उसके नीचे ही करो। इससे क्या हो जाएगा कि आप हाईलाइट करेंगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देन आपको स्पेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स एंड स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। क्योंकि क्या है ना, आपको स्पेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सफिशिएंट स्पेस है, तो आप जो स्पेस है वो अच्छे से रखिए। 2 वर्ड्स में प्रॉपर 2 वर्ड्स में स्पेसिंग होनी चाहिए। कमिंग टू द लाइन, आपके मेरे हिसाब से आपके एक लाइन में 4 to 5 वर्ड्स होने चाहिए। ओके, एंड देन स्पेसिंग बिटवीन द 2 लाइन्स आल्सो शुड बी वेरी गुड। 2 लाइन में अच्छे से स्पेस बना के रखिए। देन जब भी कोई पैसेज फिनिश होता है तो नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी सी स्पेसिंग दीजिए, थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग दीजिए एज़ कम्पेयर टू लाइन। तो स्पेसिंग से भी, प्रॉपर स्पेसिंग से आप अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हो। देन नेक्स्ट, आपको अंडरलाइन तो करनी ही है। जब भी आपका कुछ वर्ड्स हो जो गलत हो जाए तो आपको ज़्यादा हाईलाइट करके उसको इरेज नहीं करना है। आप सिर्फ एक क्रॉस लाइन मार सकते हो। ओके, ज़्यादा आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा तो आपके प्रेजेंटेशन पर इम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, दिस आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हो, कुछ पाई चार्ट हो, कुछ लाइन डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो और कुछ मैप हो, तो हम उसे ज़रूर निकालें। ओके, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा और ज़्यादा तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हमारे एसे में। तो आप मैप का भी यूज़ कर सकते हो। तो एसे का तो ये हो गया। आपको कुछ इस एसे के बारे में कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द आर्गूमेंट राइटिंग। ओके, आर्गूमेंट राइटिंग में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, तो उस टॉपिक को लेकर आपको आर्गूमेंट फॉर एंड आर्गूमेंट अगेंस्ट लिखनी होती है। तो इसको भी मेरे हिसाब से इसका भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना होगा। आप कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट को मालूम करते होगे तो आपको फैक्ट्स को लेकर इंट्रोडक्शन करना होगा, और आप कुछ भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो रिलेवेंट इन 1 or 2 लाइन्स में। शॉर्ट इंट्रो करो, देन आपको मूव होना है आर्गूमेंट फॉर की तरफ से। आर्गूमेंट राइटिंग में आपको एक ध्यान देना है कि आप कुछ अनरीजनेबल, इरैशनल आर्गूमेंट ना करें। ओके, आपकी आर्गूमेंट शुड बी रीजनेबल एंड रैशनल। ओके, और आर्गूमेंट जब देते हैं तो आप उसके आगे एग्जाम्पल भी लिखिए, क्योंकि क्या है ना कि जब हम आर्गूमेंट करते हैं और उसके आगे एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर को अच्छे से कन्विंस होता है। तो एग्जाम्पल दे तो बहुत अच्छा है। आर्गूमेंट में एक मीथ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्गूमेंट करें। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमें 8 या 10 जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो करनी पड़ेगी या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इतने आर्गूमेंट्स की तो कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने आर्गूमेंट आप बना सके वो बनाइए, लेकिन आपको कुछ इरिलेवेंट, इरैशनल, अनरीजनेबल आर्गूमेंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप वो मत बनाइए। देन अगेन सेम फॉर द आर्गूमेंट अगेंस्ट। इसका स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करेंगे। आर्गूमेंट राइटिंग आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको कुछ ऑप्शन नहीं होता। ओके, तो आर्गूमेंट राइटिंग के
दो क्वेश्चन आते हैं। ओके, ईच क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 40 मार्क्स फॉर आर्गूमेंट राइटिंग, और वो ज़्यादातर स्कोरिंग होते हैं आर्गूमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस। तो आर्गूमेंट राइटिंग में कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको किस स्ट्रक्चर में लिखना है, पहले आप इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो आप कुछ भी फैक्ट्स के लेकर ओके कोई भी कोट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए। क्या है ना कि अपने क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर मार्क्स आर्गुमेंट फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट को होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए हम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का पॉइंट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो मिनिमम एम्फेसाइज ऑन योर इंट्रोडक्शन, आपको शॉर्ट में 1 और 2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन देना है। देन कमिंग टू द आर्गुमेंट फॉर, आर्गुमेंट फॉर में हमको फिर हर एक एस्पेक्ट से आपको थिंक करना पड़ेगा। आर्गुमेंट राइटिंग में अक्सर ये होता है कि आपको जो पॉइंट है, जो आर्गुमेंट्स है, वो मेड नहीं होती, ओके, वो प्रिपेयर नहीं होती। हम कैसे कलेक्ट करें जो आर्गुमेंट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन टॉपिक है आर्गुमेंट का, हम उसे लिंक कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, डिफरेंट सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी, कल्चर, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी, तो हम इस एस्पेक्ट, इथिक्स, तो हम इस एस्पेक्ट्स को लिंक करके आर्गुमेंट राइटिंग का जो आर्गुमेंट्स है फॉर एंड अगेंस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको 1 बाय 1 आर्गुमेंट्स क्रिएट करनी होगी। मेरे हिसाब से मिनिमम 3 to 4 आर्गुमेंट्स सफिशिएंट है, लेकिन जब आप ज़्यादा भी बन सकेंगे तो बनाइए, ज़्यादा आर्गुमेंट भी अच्छी होगी, बट वो रैशनल होनी चाहिए। तो मिनिमम 3 to 4 तो होने ही चाहिए। आप आर्गुमेंट को एग्जांपल देकर कन्विंस कीजिए। देन कमिंग टू द आर्गुमेंट अगेंस्ट, फिर लाइकवाइज यू कैन क्रिएट कंटेंट ऑन आर्गुमेंट अगेंस्ट ऑल्सो। जो आर्गुमेंट फॉर है उसको ही लेकर हम उसे आर्गुमेंट अगेंस्ट भी कर सकते हैं, इसके अपोजिट में। ओके, तो आर्गुमेंट फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट दोनों भी हो गया। तो इसी में भी हम अपना हैंड राइटिंग अच्छा रखें, स्पेसिंग इन बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस अच्छा रखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके नीचे अंडरलाइन करें। ओके, ये दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। देन हमें कंक्लूजन करना है। आप एक कुछ भी बैलेंस और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। ओके, इसी तरह हमने आर्गुमेंट भी कर ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हाउ टू अप्रोच रिपोर्ट राइटिंग। तो मैंने मेरे रिपोर्ट राइटिंग की तैयारी द हिंदू में जो रिपोर्ट आता है उसको आइडियल मानकर उससे कुछ एनालाइज कर मैंने की थी। तो जब भी आपको रिपोर्ट राइटिंग की स्टार्ट करनी हो प्रिपरेशन की, तो मेरा ये सजेशन है कि आप द हिंदू, द एक्सप्रेस का रिपोर्ट देख लीजिए। जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में डिफरेंट इंसिडेंट पर, डिफरेंट इवेंट पर रिपोर्ट होते हैं, तो आप उसको एनालाइज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। टेक एन सिंपल एग्जांपल। रिसेंटली देयर वेर ए किलिंग ऑफ द 26 नक्सलाइट्स इन महाराष्ट्र इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। ओके, उस पर हम एक रिपोर्ट लिखेंगे। तो द हिंदू का रिपोर्ट के आधार पर हम इसका रिपोर्ट लिखेंगे। और CAPF एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही रिपोर्ट लिखना पड़ता है। रिपोर्ट का भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम देखेंगे 1 by 1। तो रिपोर्ट के भी कुछ पैराग्राफ होते हैं। रिपोर्ट में इंट्रो एंड कंक्लूजन नहीं होता। ओके, रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ होते हैं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसे आपको जो रिपोर्ट है, जो इंसिडेंट हुआ है, जो इवेंट हुई है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। फॉर एग्जांपल इवेंट क्या हुई, ओके,
टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द किलिंग ऑफ 26 नक्सलाइट्स इन द गढ़चिरौली। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो, आपको तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा उस इवेंट का। तो आपको क्या देना होगा, एज देयर वाज आप ये लिख सकते हो कि एनकाउंटर हो गया C60 फोर्स ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एंड नक्सलाइट्स का, दोनों के एनकाउंटर में 26 मार दिए। वो कहाँ हुआ, गढ़चिरौली में हुआ। और वो उसमें क्या क्या हुआ, 3 जो अपने पुलिस पर्सोनल थे वो भी इंजर्ड हो गए। आपको सिर्फ ये लिखना है कि 26 नक्सलाइट्स किल्ड, एनकाउंटर हुआ, गढ़चिरौली में हुआ, एंड 3 पुलिस पर्सोनल हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सीवियर इंजरी। तो आपको सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन इंसिडेंट का, गिवन सब्जेक्ट का। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, बिफोर स्टार्टिंग रिपोर्ट यू हैव टू मेंशन प्लेस एंड डेट। ओके, आपको इधर प्लेस लिखनी है तो आप प्लेस कोई भी लिख सकते हो, लेकिन प्लेस लिखने के लिए मेरा ये मानना है कि जब वो इवेंट जिस स्टेट में हुई हो, ओके, तो आप उस स्टेट का ही कैपिटल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल की जो इवेंट है वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में हुई है, तो आप महाराष्ट्र के मुंबई का लिख सकते हैं नाम, ओके, या आप गढ़चिरौली भी लिख सकते हो। मेरा ये मानना है कि आपको प्लेस वहाँ की डालनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि प्लेस मुंबई एंड आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने ओके, आप प्लेस एंड डेट पहले लिखेंगे, देन फर्स्ट पैराग्राफ में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, ओके, देन सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है गिवन इंसिडेंट का, गिवन सब्जेक्ट का। ओके, एकदम डिटेल में, बहुत डिटेल में आपको देना है डिस्क्रिप्शन। तो आप कैसे देंगे, आप वो डेट है वो भी मेंशन करेंगे जब इंसिडेंट हुआ था। तो ये क्या है ना कि क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि हमें डेट तो मालूम नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम तो अगस्त में होगी अब आने वाले एग्ज़ाम, और इंसिडेंट तो अब हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होती। ओके, आप अप्रोक्सीमेटली मंथ लिख सकते हो, ओके, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब भी आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देनी होगी, क्या डेट, किस डेट को दो इवेंट हुआ था, देन वहाँ कौन सा डे था, ओके, वहाँ प्लेस कौन सा था, गढ़चिरौली था, लेकिन एरिया कौन सा था, तकरीबन कितने नक्सलाइट्स थे, अपना फोर्स C60 के आदमी कितने थे, तो उसमें एनकाउंटर हुआ। ओके, एनकाउंटर ज़्यादा टाइम तक चला, फिर उसमें क्या हुआ कि 26 नक्सलाइट्स का किलिंग हो गई, एंड देन 3 हमारे पुलिस पर्सोनल इंजर्ड हो गए। आपको डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है इन सेकंड पैराग्राफ। देन कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, देखिए कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमने ब्रीफ और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो तो कवर किया। कोई भी इंसिडेंट होता है तो अथॉरिटी के लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, अथॉरिटी है, ओके, तब अथॉरिटी कौन होगी, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। तो ऑब्वियसली ये तो लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो उस पर कौन बोलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी होती है, उनके हेड बोलेंगे, जो SP सर है वहाँ के। ओके, तो उनको, तो जो उनका कोई भी ओपिनियन हो, जो अथॉरिटी ने कुछ बोला हो, तो आपको लिखना होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, अथॉरिटी का कुछ भी स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अथॉरिटी क्या बोलेंगे कि हमारी एनकाउंटर हुई
और उस एनकाउंटर में 26 से ज़्यादा नक्सलाइट मारे गए। हमारी जो सर्च ऑपरेशन है अभी तक जारी है और ऐसा मानना है, हमारा प्रिडिक्शन है कि 26 से भी ज़्यादा नक्सलाइट मारे गए हैं। और हमने हमारे जो 3 पुलिस पर्सोनल है उनको हॉस्पिटलाइज किया है, उनकी जो सेहत है अभी स्टेबल है। तो जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप उस स्टेटमेंट को आपको आपके रिपोर्ट में लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा, अथॉरिटी की स्टेटमेंट। आपकी ये क्वेरी होंगी कि सपोज फॉर एग्जांपल हमको उस अथॉरिटी का नाम नहीं पता, ओके, बहुत कैंडिडेट को नहीं पता, हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। कुछ भी नाम बताओ, आपको जिस पुलिस ऑफिसर का नाम पता है उसका नाम आप लिख सकते हो, या आप कोई भी एक फिक्शनल नाम लिख सकते हो जो कि इंडियन हो। तो ये दिक्कत नहीं कि हमको अथॉरिटी मालूम नहीं, तो आप कुछ भी अथॉरिटी का कुछ भी नाम हो तो मेंशन कर सकते हो। देन कमिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ, तो देखिए ये तो लोकल लेवल के अथॉरिटी ने कुछ स्टेटमेंट दिया। अब क्या है कि ये तो बहुत बड़ी इंसिडेंट है, तो ऑब्वियस बात है कुछ स्टेट लेवल के अथॉरिटी बोलेंगे, देन नेशनल लेवल के अथॉरिटी बोलेंगे। तो हमें लिखना है कि कुछ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या या नहीं, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। या महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है दिलीपराव वळसे पाटिल, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया या नहीं, वो आपको लिखना है। तो फोर्थ पैराग्राफ में हम स्टेटमेंट कैसे करेंगे फोर्थ पैराग्राफ में कि देखो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said that the work done by our police personnel and the Maharashtra police is very commendable, and we support the action of the police, and in coming time we expect the same declination of the Naxalite movement in Maharashtra and in India. ओके, ऑब्वियस बात है वो तो सपोर्ट करेंगे। तो हमें एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है, वो क्या बोले। ज़्यादातर क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कौन क्या बोला, लेकिन आपको एक रिलेवेंट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कौन से अथॉरिटी क्या बोलेगी। ओके, समझ में आया रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर। ओके, अब अनदर टाइप होता है रिपोर्ट राइटिंग का, ये तो हो गई वन टाइप। और एक ये रिपोर्ट राइटिंग में मैं एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, कि आपको रिपोर्ट राइटिंग में आपको हेडलाइन देनी पड़ती है। ओके, तो हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, आपकी शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। मेरे मानना है कि आपकी हेडलाइन 4 to 5 वर्ड्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, तो 4 to 5 वर्ड्स की एक हेडलाइन कर दीजिए। तो इस हमारे रिपोर्ट में मेरी हेडलाइन ये बन सकती है। तो आप हेडलाइन देते वक्त क्या करना है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हर एक वर्ड होता है ना ये हमारे हेडलाइन का, तो वो पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। ओके, दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अनदर टाइप क्या हो सकता है कि देखो, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ तो सेम ही है। ओके, जो अनदर टाइप है उसमें क्या होगा, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ चेंज होगा। स्ट्रक्चर बेसिकली सेम रहेगा, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ चेंज होगा। टेक एन अनदर एग्जांपल, तो हम एग्जांपल लेते हैं अभी जो रिसेंटली अमरावती में क्या हुआ, राइट्स हो गए, अनरेस्ट था, सोशल अनरेस्ट ड्यू टू सम रीजंस, सम रिलीजन रिलेटेड रीजंस। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने
फर्स्ट इंसिडेंट तो लिखा ब्रीफ में, राइट हुआ, इतने गए, ओके, इस डेट पर। सेकंड में मैं डिटेल में उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। और थर्ड में क्या करेंगे हम, थर्ड में मेरा मानना है कि कुछ भी अपोजिशन लीडर हो उस स्टेट का, तो उसको वो कुछ स्टेटमेंट देंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को। ओके, दैट इज़ द पुलिस अथॉरिटी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड गुड एंड दिस रिफ्लेक्ट द कंप्लीट फेलियर ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, हमेशा करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो आप क्या कर सकते हो, इन थर्ड पैराग्राफ यू कैन मेंशन द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट श्री देवेंद्र फडणवीस हैज सेड दैट द पुलिस personnel has completely failed and the state condition is now in a complete turmoil. Okay, or the state government need to take firm decision and need to arrest culprits. कुछ भी बोलेंगे आपको उसको थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे हम, व्हाट द लीडर ऑफ अपोजिशन सेड। ओके, देन फोर्थ पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बोले उसको काउंटर करने के लिए हमारी कुछ अथॉरिटी की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि उनको काउंटर करने के लिए एक मिनिस्टर ही बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि द स्टेट होम मिनिस्टर दिलीपराव वळसे पाटिल हैज सेड दैट the police is taking all the measures and we will establish a panel to search the various causes of the riots and we will arrest the culprits within a short time. तो कुछ ना कुछ अथॉरिटी की स्टेटमेंट दिलासा देने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगी। तो आपको फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखना पड़ेगा, अथॉरिटी की स्टेटमेंट जो कि ऑप्टिमिस्टिक होती है, जो कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है। ओके, कुछ टाइम क्या होता है ना कि हमारे रिपोर्ट में जो लोकल अथॉरिटी है, ओके, कुछ इशू होते हैं, बहुत लोकल लेवल के इशू होते हैं, तो उस इशू पर सभी टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल सकते। ओके, तब उस वक्त आपको थर्ड पैराग्राफ में कुछ एनजीओ हो, ओके, उनका स्टेटमेंट आपको कोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एनजीओ का भी स्टेटमेंट कोट करोगे। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एनी इमेजिनरी नेम ऑफ द एनजीओ, तो आपको नेम उसका कोट करना है। देन उसके सीईओ हो गए, आप कुछ भी नेम इमेजिनरी नेम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द सीईओ ऑफ द हरित सेना इज डैश डैश। ओके, आप कुछ भी इमेजिनरी नेम यूज़ कर सकते हो। हैज़ सेड दैट, तो एनजीओ है, वो ऑब्वियस बात है, वो कुछ क्रिटिसाइज भी कर सकती है गवर्नमेंट के स्टांस को। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। फिर उसके बाद कोई लोकल लेवल का अथॉरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपको उस स्टेटमेंट से आपको कुछ ऑप्टिमिस्टिक लिखना है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन बोले उनको इरेज करना है। ओके, उनके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसी तरह आपको बैलेंस रिपोर्ट लिखना है। समझ में आया अभी स्ट्रक्चर रिपोर्ट का? ओके, वन मोर पॉइंट, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि आपको सोर्सेस लिखने चाहिए। आप सोर्स लिख सकते हो। ओके, PIB, ओके, आप कुछ भी सोर्स यूज़ कर सकते हो बिलो दी योर रिपोर्ट। एक बात है कि मेरा ये मानना है कि आप रिपोर्ट राइटिंग में अंडरलाइन यूज़ ना करें। ओके, और सबसे पहले ना आप रिपोर्ट राइटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट राइटिंग, व्हाई द रिपोर्ट राइटिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। क्योंकि क्या होता है ना, एज अ असिस्टेंट कमांडेंट आपको हर एक चीज़ का रिपोर्ट करना पड़ता है अपने सीनियर्स को, अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को। तो उसी को ध्यान में रखकर रिपोर्ट राइटिंग का इंक्लूजन किया है पेपर में। ओके, अब रिपोर्ट राइटिंग भी फिनिश हो गई। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? प्रेसे राइटिंग। तो प्रेसे राइटिंग को हम कैसे कवर करेंगे? देखो, मेरे हिसाब से प्रेसे राइटिंग को आपको हमेशा लास्ट में लेना चाहिए। जो लास्ट में जो टाइम रिमेन रहता है तो उसमें आप प्रेसे राइटिंग कवर कर सकते हो। तो एक तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा,
मेरे हिसाब से 5 मिनट मिलेंगे आपको रिपोर्ट राइटिंग में, सॉरी प्रेसे राइटिंग में। क्योंकि क्या है ना कि पहले जो चीज़ें होती ना, ऐसे होता है, आर्गूमेंट्स होती है, रिपोर्ट होते हैं, वो काफ़ी टाइम अपना एग्जॉस्ट करते हैं। तो जाहिर बात है कि प्रेसे को आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो मैंने कुछ ट्रिक्स अपनाई थी, आप भी वो अपना सकते हो। पहले तो क्या है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको क्या करना है कि आपको वो जो प्रेसे का जो क्वेश्चन है, पैसेज है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉम्प्रहेंड करना है। देन आपको अपने लैंग्वेज में, लेकिन उसका जो मीनिंग है चेंज ना हो, अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है 1/3 में। उस पैसे क्वेश्चन का आपको कॉम्प्रेस करना है और 1/3 में लिखना है। आप इसी तरह कर सकते हो। प्रेसे राइटिंग की शीट अलग होती है, उस शीट में ब्लॉक्स रहते हैं और उस ब्लॉक में आपको एक एक वर्ड लिखना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि आपको पैराग्राफ बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है वो ब्लॉक्स में। ओके, आपको सब ब्लॉक्स यूटिलाइज करने होते हैं। और उसके नीचे आपको जो वर्ड्स लिमिट है, आपने जो वर्ड्स अटेम्प्ट किए हैं वो भी लिखने पड़ते हैं। प्रेसे राइटिंग में आपको हेडलाइन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स देते हैं, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है हेडलाइंस देने को। अब ये हुई बात आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो। लेकिन दूसरी केस है कि आपके पास बहुत टाइम कम है, तो आप क्या करें। तो मैंने क्या किया था कि देखो, प्रेसे जो क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत सारे पैसेजेस होते हैं। ओके, एक कंप्लीट प्रेसे क्वेश्चन होता है और उसमें छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं। तो उनके नीचे वर्ड्स की लिमिट दी जाती है, फॉर एग्जांपल 900 वर्ड्स। ओके, तो आपको प्रेसे कितने में लिखना है, 300 में, 300 वर्ड में आपको अपना प्रेसे लिखना है। तो मैं क्या करता था कि उसमें जो पैसेज थे, फर्स्ट पैसेज देन सेकंड पैसेज, मैं हर एक पैसेज को कॉम्प्रेस करता था। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक फर्स्ट पैसेज, देन आई यूज्ड टू कॉम्प्रेस फर्स्ट पैसेज। ओके, तो जो पैसेज है फर्स्ट का, उसको कॉम्प्रेस करके 1/3 लिखता था उस टाइम, साइमल्टेनियसली 1/3 करता था और लिखता था। देन आई यूज्ड टू टेक सेकंड पैराग्राफ। ओके, देन उसे मैं 1/3 कॉम्प्रेस करता था, कुछ लाइन लेता था इंपॉर्टेंट, कुछ छोड़ देता था। इसमें हमें ये प्रिकॉशंस लेने की आप जो एग्जाम्पल हो उसे ना लें, जो रिपीटेड पार्ट है क्वेश्चन में उसे ना लें। ओके, तो मैंने सेकंड पैराग्राफ लिया, उससे भी कॉम्प्रेस करके लिख दिया। तो आपको इसी तरह हर एक पैराग्राफ को लेकर 1/3 कॉम्प्रेंड करके आपको लिखना है। बट जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है 1/3, वो ब्रीच नहीं करना है। ओके, आपको किसी भी हालत में प्रेसे राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। आप कॉपी कर लो सीधे, जो क्वेश्चन में है कुछ लाइंस उसको कॉपी कर लो, बट अटेम्प्ट कर लो। आपको कम से कम 2 या 3 मार्क तो मिलेंगे आउट ऑफ 10, बट अटेम्प्ट करना है। 2 या 3 मार्क्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन ऑफ आवर पेपर। कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि एक बड़ा पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को हमें पढ़ना चाहिए। ओके, केयरफुली पढ़ना चाहिए, और वो पैसेज सिंपल होता है और उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क को होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक क्वेश्चन का अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में आंसर देना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आपको हर एक क्वेश्चन का 3 या 4 लाइन्स में क्वेश्चन देना चाहिए और अपने वर्ड्स में। और जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली हिट करते हैं फ्रॉम पैसेज, तो हमें आंसर भी डायरेक्टली पैसेज में मिलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो उसमें क्या करें, आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, 3 या 4 लाइन में लिख सकते हो। तो ये कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देकर जाएगा कॉम्प्रहेंशन वाला क्वेश्चन। देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ग्रामर। तो ग्रामर भी सबसे स्कोरिंग है। मेरे हिसाब से ग्रामर को पहले लेना है, पेपर के आपके स्टार्ट होने से जब होता है तब उसे लेना चाहिए, क्योंकि वो कम टाइम में अटेम्प्ट होता है। और ग्रामर के मार्क्स आपको 100% मिलने वाले हैं। आप करेक्ट लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। देन कमिंग टू द फर्स्टली यू हैव टू कवर ग्रामर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, ग्रामर के अच्छे से रूल कर लो, चेंज द वॉइस,
direct and indirect speech, then articles, pronouns, tenses. These are the frequently asked questions. आपको इस एरिया पर ध्यान देना है. Then coming to the next sub question of the grammar is phrases. ओके पहले क्या था कि पहले सिनोनिम्स वर्ड्स, एंटोनिम्स वर्ड्स पूछे जाते थे, लेकिन अभी ट्रेंड क्या बना है कि आज अभी फ्रेजेस पूछते हैं, और फ्रेजेस का हमें सेंटेंस और स्टेटमेंट में एप्लीकेशन करना पड़ता है. ज़्यादातर ये पाया जाता है कि वो जो फ्रेजेस होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. ओके कॉन्वेंट के स्टूडेंट भी उसे अटेम्प्ट कर नहीं पाते. तो अब हम क्या करें? तो मेरा ये मानना है कि जिस फ्रेजेस सिंपल है, आपको मालूम है, तो आप उस फ्रेजेस को स्टेटमेंट में अप्लाई कर सकते हो इजीली. लेकिन मैंने क्या किया था कि जो फ्रेजेस डिफ़िकल्ट है तो उस फ्रेजेस को आप जनरल स्टेटमेंट में अप्लाई करो, वेरी जनरल स्टेटमेंट. ओके आप कुछ भी जनरल स्टेटमेंट बनाओ. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फ्रेज एंड द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज यू डोंट नो, देन क्या करना है, आपको वेरी जनरल स्टेटमेंट बनाना है उस फ्रेज पर. जनरल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? इन सोसाइटी वी यूज्ड टू सी देयर आर मेनी पीपल्स, एंड दैट फ्रेज को आपको डालना है एंड वो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. तो आप जनरल स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है. ओके अटेम्प्ट करना है. आपको मालूम नहीं है तो भी आपको फ्रेजेस अटेम्प्ट करना है. एंड क्या है कि ये जो मैं आज लेक्चर लेने वाला हूँ और जो लेता हूँ, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन से. ओके एंड मेनी ऑफ द एक्सपर्ट एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स माइट डिफर ऑन इट. तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको फ्रेजेस जब भी आपको आते ना हो तो भी आपको अटेम्प्ट करने चाहिए. ओके देन अगेन द नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज मेकिंग सेंटेंस करेक्ट. तो ये भी डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है. इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो सेंटेंस आपको पहले से ही करेक्ट लगते हैं, तो उसे करेक्ट कैसे करें? ओके हर एक सेंटेंस अपनों को करेक्ट लगता है, वो इनकरेक्ट लगता ही नहीं. तो अब हमें उसे करेक्ट कैसे करें? तो आप कुछ भी कर लो. ओके आपको जो चेंजेस आपको ऐप्ट लगते होंगे, जो करेक्ट लगते होंगे, वो करो और अटेम्प्ट करो. इससे पहले मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए. ओके हम कब प्रोनाउन यूज करते हैं, कब जो ऑक्सिलरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, सब जो ग्रामर्स के रूल्स है वो अच्छे होने चाहिए. जब आपने ग्रामर से अच्छा सा पढ़ लिया हो तो आप जो सेंटेंस करेक्ट करने के जो ट्रिक्स है, जो रूल्स है, वो सीख जाएंगे. ओके इसी तरह हमारा पेपर 2 तो कवर हो गया. कुछ सजेशन है मेरे. पेपर 2 इज़ अ completing paper 2 in a prescribed time, that is the 3 hours, is always difficult task, and in my opinion it is the challenging task for every candidates. तो हमें वेरी रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी. एंड सेकंड इज आपको अच्छे सा प्लानिंग करना होगा. आपको यह प्लानिंग करना होगा कि हम किस क्वेश्चन को पहले लें और किस क्वेश्चन को बाद में लें. मेरा ये प्लानिंग था कि मैं पहले ग्रामर को अटेम्प्ट करता था, जो कि कम टाइम में अटेम्प्ट होता था. देन आई यूज टू टेक आर्गूमेंट राइटिंग, ओके, देन रिपोर्ट राइटिंग, देन एसे राइटिंग, एंड देन कॉम्प्रहेंशन, एंड आई यूज टू गो एट लास्टली टू द प्रेसे राइटिंग. जो 5 मिनट समय रहता था तो उसमें मैं कवर करता था उसे प्रेसे राइटिंग को. तो इसी तरह आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेरी, आंसर राइटिंग की. जब आपको पेपर कंप्लीट करना है तो आपको रिगरस आंसर राइटिंग करनी होगी. लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स से ना वो आंसर राइटिंग नहीं करते, तो आपको आंसर राइटिंग करनी होगी. लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट है पूछते हैं कि हम आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें. तो मेरा ये मानना है कि यस, एसे और आर्गूमेंट राइटिंग को आपको पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए. ओके, यू हैव टू बी सफिशिएंट नॉलेज टू राइट एसे एंड आर्गूमेंट राइटिंग. बट हम रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. ओके, कभी भी आप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं. देन अनदर इज आपको क्या क्या सोर्सेज पढ़ने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए. तो मेरी एक सोर्सेज की बुक लिस्ट है. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूर जीएस सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड, और आपको जीएस सिलेबस की कुछ अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो. ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पेपर 2 के लिए. देन
आपको मेरी ये सलाह है कि आप जो विजन आईएएस के 365 मेंस होते हैं, पॉलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये 4 सब्जेक्ट के 365 मेंस के जो बुकलेट होते हैं आप पढ़ लो, क्योंकि इनमें से आपको अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे, नॉट ओनली फॉर द आर्ग्यूमेंट राइटिंग बट ऑल्सो फॉर एसे, रिपोर्ट एंड अदर ऑल्सो। ओके, तो आप ये पढ़ लें। देन फॉर स्ट्रक्चर देर इज़ अ बुक बाय प्रशांत जगताप सर ऑफ पाथफाइंडर एकेडमी, इज़ वेरी गुड फॉर पेपर 2। मैंने भी वही पढ़ा था पेपर 2 के लिए, फॉर स्ट्रक्चर पार्ट के लिए। ओके, देन मैंने यूट्यूब का बहुत यूज़ किया था पेपर 2 के लिए। एक लेक्चर, एक यूट्यूब चैनल है रश्मि मैम का। ओके, इसका नाम शायद कम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, ऐसा इसका नाम है चैनल का। मैम ने अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन पर हर एक टॉपिक को अच्छे से लिया है, आप वो देख सकते हो। मैंने भी वही से रेफर किया था। ओके, तो पेपर 2 के लिए यही बुक लिस्ट थी मेरी तो। हाँ, और एक आप ऐड कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए आपको आर्गूमेंट भी आ सकती है और आपको ऐसे भी आ सकता है। तो सिक्योरिटी को आप कैसे कवर करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि आप अशोक कुमार सर जी का एक बुक है सिविल सर्विसेज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आप वो ज़रूर पढ़ लें। इसमें से आपको अच्छी सी इंसाइट्स मिलेगी ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आपको ऐसे में बहुत काम आएगी। इसके अलावा आप जो विजन 365 है उसके सिक्योरिटी रिलेटेड जो बुकलेट है वो भी पढ़ सकते हो। Thus this is all about our paper 2. So wish you very all the best for all.